Great honor and responsibility to welcome you all to this one-day capacity building program on two deeply interconnected and urgent themes: child protection and explosive ordnance risk education (EORE), being organized by Jammu and Kashmir Legal Service Authority in collaboration with UNICEF and with the help of DALSA Baramulla. Our gathering today is more than a legal initiative. It's a humanitarian mission rooted in the principles of child rights, justice and protection, especially in conflict-affected communities. The recent cross-border shelling incidents in Uri sector of Baramulla have once again exposed civilians, particularly children, to trauma, displacement and invisible yet lethal threat of unexploded ordnance. In this context, the importance of today's program is amplified and magnified. The NALSA Child Friendly Legal Service to Children Scheme 2024 offers a national framework for delivering holistic, sensitive legal aid to both children in conflict with law and children in need of care and protection. The scheme emphasizes, first, provision of free, accessible and child-friendly legal aid, especially for vulnerable groups like children with disabilities and those entangled with law. District Baramulla, it is the border area, and the most vulnerable class is the people who live here. So we are here to share the concern and the unwavering commitment to ensure every child gets the safety, dignity and the justice, who may suffer because of different situations which may arise. As we have recently seen, the situations, we felt that there were warlike situations in our own district, and we have seen how people have suffered, especially the downtrodden people or the people who live at the borders. And this forum, it provides us an opportunity to learn about different schemes which have been introduced by the center and which are being implemented by the NALSA and the UT district administrations, legal service authorities. Jammu and Kashmir Legal Service Authority remains committed to upholding the principle of child-friendly justice guided by sensitivity, fairness and compassion. Our collaboration with UNICEF, a trusted and tireless partner, reflects our unwavering commitments to the cause of child rights and protection. Today's program is more than just a formal event. It is a reaffirmation of our collective resolve to safeguard the rights, dignity and well-being of the most vulnerable among us, our children. अगर हम ग्लोबली देखें, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिनमें सस्टेन्ड और कंटिन्यूअस वॉर चलता आ रहा है, और वहाँ पर माइंस की बात, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंसेस की बात, रिस्क की बात आए दिन मीडिया में हमारे सामने आती है. Who is presumed to be very innocent. It is this time not that presumption of innocence that we also presume it is in favor of accused. No, presumption is a small child is a blank piece, a piece of paper. It is the environment, उस पे क्या लिख देना. ये शायद वो सर्कमस्टांसेस होते हैं इर्द गिर्द के, जो वो कोई ऐसा एक्ट करने पे मजबूर हो जाता है which he never wanted, which he never intended, जो कि हम देखते हैं जब बड़े मुल्जिम होते हैं, मोटिव, एक्टर्स रियस, कुछ ये चीजें हैं, वो तब जाकर ये करता है. कहीं ना कहीं हम इस बच्चे के साथ डेफिनेशन में ही ज्यादती करते हैं. क्यों? कानून भी हमें कोई एक डेफिनेशन इस बच्चे को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. ये कानून अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है बच्चा उसको कहेंगे जो 18 साल से कम हो, और जब सेक्शन 15 की बात हम करते हैं तब यही कानून हमसे कहता है कि ये बच्चा वही है जो 16 साल से 18 साल तक है. तब इसको अंडर द स्पेशल रेफरेंस आपने भेजना है टू द मेंटल हेल्थ एस्टैब्लिशमेंट्स को. अगर वहाँ से रिपोर्ट आती है, जैसे अभी हमारी कलीग बता रही थी कि जब कोई चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बच्चा होता है, तो अगर उसकी एज पर्टेन करती हो फ्रॉम 16 to 18, या अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करें या चाइल्ड ICDS की बात करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ की बात करें, पुलिस की बात करें,
देखिए हमारी एक स्कीम है जो 2024 में आई है, लीगल सर्विस उसके तहत हमने लीगल सर्विस यूनिट फॉर चिल्ड्रन बनाए हैं, हर ज़िले में बनाए हैं। उसी की निस्बत हमें उस स्कीम को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम किया था। और जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों वॉर लाइक सिचुएशन हो गई थी, तो जो हमारे बच्चे हैं इनको नहीं पता होता है कि कहाँ पर क्या खतरा है। लाइक कहीं पर अनअटेंडेड शेल पड़ा है या कोई ऐसा एक्सप्लोसिव मवाद पड़ा है जिससे अगर बच्चा हाथ लगाए तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उस चीज़ को ये उजागर करने के लिए हमने यहाँ पर एक PLVs पैनल लॉयर्स लीगल एड डिफेंस काउंसिल्स को बुलाया था, ताकि हम उनको बता सके, उनको ये अवेयर कर सके कि अगर आपके इलाके में इन जो वॉर इफेक्टेड एरियाज है, अगर उन इलाकों में कहीं आपको बच्चे की सेफ्टी के निस्बत आपको कोई उनको आगाह करिए कि ऐसी चीज़ें जो अनअटेंडेड वहाँ पर पड़ी हुई है उनके नज़दीक ना जाए। अगर कोई बच्चा ऐसी कोई चीज़ देखता है, वो अपने घर में जो उसका वालिदैन है या कोई सोशल वर्कर है या जो भी मौजूद है उस इलाके के, उनको इत्तला दे कि यहाँ पर ऐसी अनअटेंडेड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है, ताकि वो पुलिस को या जो भी जिम्मेदार अशखास है उनको इन्फॉर्म कर सके और वो चीज़ वहाँ से हटाई जाए, ताकि किसी को जान का खतरा या कोई जख्मी ना हो हादसे में। देखिए आज के प्रोग्राम के हवाले से जो चाइल्ड फ्रेंडली स्कीम लॉन्च हुई है 2024 में, उसमें एक तो प्रमोशन और साथ में अवेयर भी करना, यहाँ के लॉयर्स पैरालीगल वॉलंटियर्स उन सबको अवेयर करना कि किस तरीके से उनको ये स्कीम आगे चलानी है, खुसूसन उन एरियाज़ में जो चूँकि आप जानते हैं कि हम सब टर्मोइल का शिकार है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये, तो यहाँ पर कभी भी वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। और रिसेंटली आपने देखा महीने पहले के क्या सिचुएशन रही थी, तो बहुत ज़रूरी था कि लोगों को भी सैनिटाइज़ किया जाए, खुसूसन जो बॉर्डर एरियाज़ है, उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट बारामूला भी एक बॉर्डर एरिया में आता है। तो ज़रूरी है कि लोगों को सैनिटाइज किया जाए कि बच्चों के क्या हुकूक है, खुसूसन वो बच्चे जो बॉर्डर एरियाज़ में रहते हैं, उनको कौन से स्टेप्स उठाने हैं, कैसे उनको एजुकेट किया जाए इस निस्बत की वो अपनी जान भी बचाए। और अगर कहीं पर ऐसा कोई शल है अनअटेंडेड या कोई IED है कहीं पर या लैंड माइन है, उनको किस तरीके से मतलब कैसे उनको अपने आप को बचाना है और साथ में मैक्सिमम हार्म जो है वो भी वहाँ पर ना हो। इस वजह से ये जो स्कीम है इसको लॉन्च करके इसके प्रमोशन के लिए आज ये स्टेप उठाया गया है। उसमें सेक्रेटरी साहिबा जो है कश्मीर की लीगल सर्विस अथॉरिटी की, वो आई हुई है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, तो उसी के निस्बत ये आज प्रोग्राम हुआ।